So in this class we have Abdullah Khan, Ahmad, Ayan Amir, Aisha Nawaz, Azlan Mubashir, Iman Nisar, Filza Basit, Huren Saad, Inaya, Mahrosh Shehbaz, Maryam Naeem, Nabiha Awan, Nawal Tabish, Siddiqa Wasan, Umehani Kazi, and Zainab Ali. Alright, everyone. Assalamu alaikum. I hope everyone can see my screen clearly and also listen to my voice. Let's recall everyone what we were studying in the last class, what we have completed up till now. अब तक हमने क्या कुछ cover कर लिया है, जरा उसे हम देख लेते हैं एक दफा. That in history we have completed the religious reformers, decline of the Mughal Empire, East India Company, War of Independence. In geography, we have completed water resources, forests, and fishing. So this means that अगर हम workbook की बात करें, we have completed up till now workbook 1 almost 3 chapters हमारे हो गए इसमें, and same goes with geography as well. Geography की workbook 2 है आपके पास, and almost we have completed almost how much 60% of it, 60% इसकी भी complete हो गया है. Let's look at the board everyone and let us see what's the next plan. आज की क्लास में possibly we're going to complete chapter number 4 of history, that is सर सैयद अहमद खान. आज की क्लास में हम लोग सर सैयद अहमद खान को भी complete कर लेंगे. possibly आज की क्लास में ये वाला part भी complete हो जाएगा. So this means that only one chapter would be left in section 1, that is languages. सिर्फ एक languages का chapter रह जाएगा और जो कि chapter number 5 है. Why I'm going to repeat this everyone? मैं ये पूरी बात को दोबारा से क्यों repeat कर रहा हूँ और बाद में next class में भी करूँगा. The reason is that I would want every one of you to complete your workbooks as soon as possible. आप लोग अपनी workbooks complete करेंगे, submit करवाएंगे, checking करके मैं वापस करूँगा. Only then you could improve, otherwise you cannot improve, वरना आपकी improvement होगी ही नहीं. तो मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हमारे 4 chapters हो जाएंगे history के, that is almost 80% of the workbook. एक chapter रह जाएगा, that is languages. I would want every one of you to complete it as soon as possible. जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आप लोग सबमिट करवाएंगे तो फिर मैं चेक करके वापस करूंगा, अदरवाइज आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी. Now look at the board everyone. We begin with this chapter Sir Syed Ahmad Khan. इनका चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. And what we have studied in religious reformers, we discussed about Shah Waliullah, we discussed about Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, we discussed about Titu Mir, Haji Shariatullah, and Mohsinuddin. But they were all known as the religious reformers because they tried to revive Islam in India. इन सबको हम क्या कहते थे? इन सबको हम कहते थे रिलीजियस रिफॉर्मर्स, क्योंकि ये हिंदुस्तान में इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान वाज नॉट रियली अ रिलीजियस रिफॉर्मर. सर सैयद अहमद खान रिलीजियस रिफॉर्मर नहीं थे. रादर सर सैयद अहमद खान इज नोन टू बी अ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर. सर सैयद अहमद खान को हम सोशल रिफॉर्मर या पॉलिटिकल रिफॉर्मर कह सकते हैं. इनका बहुत ज्यादा कोई रिलीजियस कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ही ट्राइड टू अपलिफ्ट द मुस्लिम सोसाइटी in a political way as well. That is what he did. That is what his achievement was. So Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817. He died in 1898. He was deeply interested in Muslim history and culture.
he was knighted by the British in 1876. What is meant by knighted by the British? ये जो आपको टाइटल नजर आ रहा है दिस इज द टाइटल ऑफ सर. असल नाम है इनका सैयद अहमद खान, लेकिन ये जो टाइटल है सर का, दिस शोज द नाइटहुड. इससे आपको पता चलता है कि उन्हें नाइटहुड मिला था. नाउ व्हाई डज एनीवन गेट द नाइटहुड? किसी को भी नाइटहुड कब मिलता है? You get the knighthood of the British Crown if you do a particular service for them. अगर आप ब्रिटिश क्राउन के लिए कुछ सर्विस करते हैं, उन्हें किसी अच्छी तरह से सर्व करते हैं, only then you are going to get this title of sir. फिर आपको ये टाइटल ऑफ सर मिल जाता है. So what was his contribution exactly? जब ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रही थी, इन दोज डेज द रेबल्स वर किलिंग द ब्रिटिश. उस जमाने में जितने भी हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रेबल्स थे, वो ब्रिटिश को चुन चुन के मार रहे थे. इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि कानपुर में 300 के करीब औरतों और बच्चों को मार दिया गया था. सो ऑब्वियसली इट वाज द टाइम ऑफ एडवर्सिटी फॉर द ब्रिटिश. लेकिन इस जमाने में सर सैयद अहमद खान वाज अमंग दोज मुस्लिम्स हु रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश. सर सैयद अहमद खान उन मुसलमानों में से थे जो कि अंग्रेजों के साथ लॉयल भी रहे. ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय भी थे. एंड व्हाट ही डिड, ही सेव्ड द लाइव्स ऑफ सम ब्रिटिश पीपल. उन्होंने कुछ ब्रिटिश सिविलियंस की जान बचाई थी फ्रॉम द रेबल्स. दैट इज व्हाई ही वाज गिवन द नाइटहुड. इसी वजह से अंग्रेजों ने खुश होके उन्हें नाइटहुड प्रोवाइड कर दिया था. लेट्स रिकॉल एवरीवन, जहां पर पिछली क्लास को हमने एंड किया है, वहीं पर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे. बट वी नीड टू कीप अ क्वेश्चन इन आवर माइंड. हमें अपने जहन में एक सवाल को रखना होगा. राइट डाउन दिस क्वेश्चन एवरीवन. इस सवाल को आप लोग अपने पास लिख भी सकते हैं. राइट डाउन दिस क्वेश्चन एवरीवन. एक्सप्लेन व्हाई सर सैयद अहमद खान, explain why Sir Syed Ahmad Khan tried to uplift the social and economic status of the Muslims. 7 marks. ये एक सवाल है जो मल्टीपल तरीकों से एग्जाम में पूछा जा चुका है. यू वुड बी एबल टू सी दैट इन द वर्कबुक एज वेल. जब आप वर्कबुक खोलेंगे तो वर्कबुक में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से, कितने मल्टीपल तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को पूछा गया है. इन शॉर्ट, दिस इज अबाउट द बिलीफ्स ऑफ सर सैयद अहमद खान. ये जो सवाल है वो सर सैयद अहमद खान के बिलीफ्स के बारे में. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द मोटिवेशंस ऑफ सर सैयद अहमद खान. ये सर सैयद अहमद खान की मोटिवेशंस के बारे में है कि सर सैयद अहमद खान ने क्यों सोचा कि मुसलमानों के रिवाइवल की जरूरत है. सर सैयद अहमद खान ने क्यों सोचा कि मुसलमान को सोशली और पॉलिटिकली अपलिफ्ट करने की जरूरत है. Now look at the board everyone. सामने देखना. After the revolt of 1857, the British became kind of cruel to deal with the rebels. जितने भी लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन लोगों को पनिशमेंट का सिलसिला शुरू हो गया था. कुछ लोगों को फांसी दी जा रही थी, कुछ लोगों को गोली से मार दिया जा रहा था, कुछ लोगों को कैनन से मारा जा रहा था, कुछ लोगों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था, कुछ लोगों को जला दिया जा रहा था, कुछ लोगों को, मुसलमानों को खासतौर पे सुअर की खाल में लपेट के मुसलमानों को फांसी दी जा रही थी. सो द मुस्लिम्स वर सफरिंग द मोस्ट. सबसे ज्यादा जो तकलीफ में थे वो मुसलमान थे. व्हाई इज दैट? द ब्रिटिश स्टार्टेड टू हेट द मुस्लिम्स. अंग्रेज नफरत कर रहे थे मुसलमानों से. व्हाई इज दैट? बिकॉज इन द हिस्ट्रीज क्लास आई शोड यू अ मैप. मैंने आपको एक मैप दिखाया था कि हिंदुस्तान में वो कौन से इलाके थे which participated in the revolt. के हिंदुस्तान के वो कौन से इलाके थे जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था. So if you all remember, mainly the Muslim majority areas that participated in the revolt. खास तौर पे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था. बहुत सारे नॉन मुस्लिम एरियाज तो ऐसे थे which remained neutral during the war. बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स तो ऐसे थे जो कि अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे. कश्मीर ने मदद की थी, सिखों ने मदद की थी अंग्रेजों की. तो ब्रिटिश एक्चुअली हेटेड द मुस्लिम्स. अंग्रेजों को तकलीफ ये थी
कि मेनली द मुस्लिम्स आर ट्रेटर्स, मेनली द मुस्लिम्स आर डिसलॉयल पीपल, मेनली द मुस्लिम्स आर द वंस हु रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो मुसलमानों को ही सारी सजा मिलेगी। द ब्रिटिश स्टार्टेड टू रीऑर्गेनाइज द आर्मी, अंग्रेजों ने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। द ब्रिटिश मेड श्योर दैट द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वुड बी डिक्रीज स्लाइटली, अंग्रेजों ने ये फैसला किया कि अब इस तरीके का रेशियो रखेंगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रहे ब्रिटिश में और इंडियंस में। इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि इंडियन सोल्जर्स वर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने इस तरीके से कर दिया कि प्रीवियसली द डिफरेंस वाज ह्यूज, पहले होता यह था कि डिफरेंस बहुत ज्यादा था। नाउ व्हाट द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू कि इंडियंस का नंबर थोड़ा सा कम कर देंगे एज कंपेयर टू ब्रिटिश, सो दिस वाज द पॉलिसी। लेकिन इवन इन द आर्मी द ब्रिटिश डिड नॉट प्रेफर द मुस्लिम्स। जब ब्रिटिश ने दोबारा से आर्मी बनाना शुरू की तो अपनी आर्मी में ब्रिटिश ने मुसलमानों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। दे वर नॉट कंसिडरिंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों को कंसिडर नहीं कर रहे थे। द ब्रिटिश वर इंक्लूडिंग मोर नॉन मुस्लिम्स इन द आर्मी बिकॉज द ब्रिटिश ट्रस्टेड मोर नॉन मुस्लिम्स, अंग्रेजों का भरोसा ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था और वो इसी तरीके से उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। There were some benefits of the War of Independence as well. War of Independence के कुछ benefits भी थे। For example, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हिंदुस्तान में खत्म हो गया था, बट द प्रॉब्लम वाज ब्रिटिश क्राउन रूल वाज स्टार्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल डायरेक्टली हिंदुस्तान में शुरू हो गया था। क्वीन विक्टोरिया वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। सो विच मीन्स कि हिंदुस्तान में बाकायदा आजादी नहीं हुई थी। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक का नाम है, लेकिन कोई ऐसी आजादी नहीं मिली थी हिंदुस्तान वालों को। एक्चुअली बादशाहत जो हिंदुस्तान में थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश बादशाहत केम इन इंडिया, जो अंग्रेजों का क्राउन रूल था, जो इंपीरियल रूल था, अब वो हिंदुस्तान में शुरू हो गया था। द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड आफ्टर एवरी 10 years देयर वुड बी न्यू रिफॉर्म्स, अंग्रेजों ने वादा किया कि हर 10 साल के बाद हिंदुस्तान में नए रिफॉर्म्स होंगे। ब्रिटिश ने यह भी वादा किया कि देयर वुड बी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स, अंग्रेजों ने यह वादा किया दैट दे वुड इंक्लूड द इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विस, के इंडिया वालों को गवर्नमेंट सर्विस में इंक्लूड करेंगे इफ द इंडियंस वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, अगर इंडिया वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, ओनली देन दे वुड बी एबल टू बी अपॉइंटेड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल जाएगी। अंग्रेजों ने वादा किया दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियंस, किसी भी इंडियन के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वुड पे रिस्पेक्ट टू एंशिएंट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कस्टम्स, और जितने भी लोगों के यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है उन सबको रिस्पेक्ट करेंगे। द ब्रिटिश वुड अबाइड बाय ऑल द ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, अंग्रेज किसी भी ट्रीटी को वायलेट नहीं करेंगे। द ब्रिटिश वुड नॉट एक्वायर फर्दर टेरिटरीज, और फर्दर किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। कुछ तो एडवांटेजेस नजर आ रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के खत्म होने पे, लेकिन मुसलमानों के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्यों? लेट्स लुक एट द बोर्ड एवरीवन, जरा बोर्ड के ऊपर देखिएगा कि मुसलमानों के हालात बिगड़ते हुए क्यों जा रहे थे। आई जस्ट टोल्ड यू दैट द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको क्या बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी इंडियंस वुड बी एबल टू पास द एग्जाम, मुझे ये बताओ कि कितने इंडियंस होंगे जो कि एग्जाम को पास कर पाएंगे। अंग्रेजी तो लोगों को आज भी नहीं आती, 2024 चल रहा है, इट्स 2024 एंड पीपल डू नॉट नो इंग्लिश राइट नाउ प्रॉपरली। तो उस जमाने में सोचो, उस जमाने में तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती होगी। एंड व्हाट द ब्रिटिश हैड डन, द ब्रिटिश हैड मेड इंग्लिश एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट वाज इंग्लिश। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी उर्दू एंड पर्शियन, एक जमाना था जब उर्दू जबान और फारसी जबान को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल ने बनाया हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने 1833 ऑनवर्ड्स इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, while उर्दू was made the second official language of India। हिंदुस्तान की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट वाज उर्दू।
ना द थिंग वाज, अगर मुसलमान पढ़े लिखे हैं, अगर मुसलमानों को उर्दू जबान आती है, एटलीस्ट मुसलमान सेकंड लेवल ऑफ जॉब पर जा सकते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों को या इवन हिंदुओं को टॉप लेवल की जॉब चाहिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, दे नीड टू नो इंग्लिश, दे नीड टू पास द एग्जाम ऑफ आईसीएस इन इंग्लिश, तब जाके वो टॉप लेवल की जॉब कर सकेंगे। इस हिसाब से तो मुसलमान बेचारे पीछे रह जाएंगे। मुसलमान बेचारे पीछे क्यों रह जाएंगे, हिंदू क्यों नहीं पीछे रह जाएंगे? द रीजन इज दैट मुस्लिम्स वर नॉट गेटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, मुसलमान वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल नहीं कर रहे थे। बट द हिंदूज वर गेटिंग वेस्टर्न एजुकेशन, हिंदूज ने वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल करना शुरू कर दिया था। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द हिंदूज एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज द न्यू रूलर्स। हिंदू काफी अकलमंद थे, उन्होंने देखा कि अब नए रूलर्स आ गए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब तो हम अंग्रेज जैसा कहेंगे हमें वैसा करना होगा, दीज आर द न्यू रूलर्स। अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर आते हैं, वी वुड फॉलो इट, जैसा जो निजाम होगा उसे फॉलो करेंगे, यही तो अकलमंदी थी। मुसलमान तालीम हासिल नहीं कर रहे थे और इसी वजह से मुस्लिम्स वर लैकिंग बिहाइंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान पीछे होते जा रहे थे, हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर फील्ड में मुसलमान पीछे होते जा रहे थे। अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। बट वाई वर द मुस्लिम्स नॉट गेटिंग एजुकेटेड, मुसलमान तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे थे? दैट इज द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। द रीजन इज दैट मुस्लिम स्कॉलर्स डिस्करेज्ड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। जो मुसलमानों के उलमा थे, वो मुसलमानों को मना कर रहे थे कि तुम लोग तालीम हासिल नहीं करो। क्यों हासिल नहीं करो? क्योंकि को एजुकेशन होता है। को एजुकेशन में अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूल जाएंगे। अगर मुसलमानों के बच्चे अंग्रेजी जबान को पढ़ेंगे, देन दे वुड फॉरगेट देयर कल्चरल वैल्यूज, देयर कल्चरल लैंग्वेज, तो मुसलमान अपनी जबान को, अपने कल्चर को भूल जाएंगे। इफ द मुस्लिम्स आर गोइंग टू गो टू एन एन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, तो वहां पर साइंस पढ़ाई जाएगी, और अगर साइंस पढ़ेंगे तो मुसलमान अपने रिलीजन से दूर हो जाएंगे। ऑल्सो द बाइबल वॉज बींग टॉट, चर्च एजुकेशन वॉज बींग गिवन। तो ऐसे में मुसलमान डिस्करेज करते थे कि मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे हो सकता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, या अपने दीन से दूर हो जाएंगे, या मे बी अपने कल्चरल वैल्यूज को भुला देंगे। एज अ रिजल्ट मुस्लिम्स वर लैकिंग बिहाइंड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। बट व्हाट अबाउट द हिंदूज? हिंदूज वर एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश को एक्सेप्ट कर लिया एज द न्यू रूलर्स, ब्रिटिश के तौर तरीकों को फॉलो करना शुरू कर दिया। So the Hindus were being preferred, Hindus को prefer भी कर रहे थे British, they were preferring them in the army, they were preferring them in the administration as well. Slowly and gradually over the years the Hindus got educated, the Hindus got organized and more disciplined, और आहिस्ता आहिस्ता Hindus की जो generations आ रही थी, they were getting more organized and more disciplined because of better education. अच्छी तालीम होगी तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपने डिसिप्लिन हो जाएंगे और अपने राइट्स के लिए बात कर सकेंगे। In 1867, that's like almost 9 years after the revolt had ended. War of Independence कब खत्म हुई थी? 1858 में रिवॉल्ट खत्म हो गई थी। अब आ गया 1867, तकरीबन 9 साल गुजर गए इस बात को। In 1867, the Hindus demanded to make Hindi the second official language of India by replacing Urdu. अब देखो क्या हो रहा है, अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तालीम हासिल कर ली, शऊर आ रहा है, विजन बढ़ रहा है, नाउ द हिंदूज स्टार्टेड टू डिमांड कि हिंदी जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और उर्दू जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया जाए। नाउ यू कैन सी कि अब हिंदूज और मुस्लिम्स अलग अलग हो रहे हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था हिंदूज और मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश को अपोज कर रहे थे। नाउ वी आर स्टडिंग के हिंदूज अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, अपनी कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए बात कर रहे हैं। दिस इवेंट इज नोन एज दी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। इस इवेंट को हम हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी कहते हैं। सो दिस इवेंट इज नोन एज दी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। बट व्हाट वाज सर सैयद अहमद खान, what were the beliefs of Sir Syed Ahmad Khan? What was the vision of Sir Syed Ahmad Khan? जब सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमान और ब्रिटिश के बीच में
गैप बढ़ता जा रहा है। ना मुसलमानों को आर्मी में जगह मिल रही है, ना मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिल रही है। सर सैयद अहमद खान केम टू अ कंक्लूजन that it was necessary to improve the relations of Muslims with the British. सर सैयद अहमद खान इस नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमानों के ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ अच्छे होने चाहिए। क्यों अच्छे होने चाहिए? Sir Sayyid believed if the Muslims would not have good relations with their rulers, the Muslims would never be favored by the British. अगर मुसलमानों ने अपने ताल्लुकात को अच्छा नहीं किया अंग्रेजों के साथ, तो मुसलमानों को कभी भी फेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे तो गवर्नमेंट आपको चांसेस देगी, अपॉर्चुनिटीज देगी। अगर मुसलमान लड़ते रहेंगे इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। जो हिंदूज हैं वो प्रोग्रेस करते रहेंगे, मुसलमान सिर्फ पीछे ही होते रहेंगे। दिस वॉज द vision of Sir Syed Ahmed Khan. दूसरी चीज, when Sir Syed Ahmed Khan experienced the Hindi-Urdu controversy, Sir Syed Ahmed Khan started to believe कि मुसलमानों को तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। If the Muslims would get educated, the Muslims would get organized, the Muslim would become disciplined, and so the Muslims would also be able to fight for their own rights. तो फ्यूचर में मुसलमान भी अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकेंगे। लेकिन अगर मुसलमान ये पहले स्टेप पर ही नहीं जाएंगे तो मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों की लैंग्वेज, हर चीज रिस्क पे होगी। बिकॉज एज द हिंदूज वर प्रोग्रेसिंग, वो फ्यूचर में सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, अपनी ही डिमांड्स रखेंगे और मुसलमानों को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, वंस अपॉन अ टाइम, एक जमाना था, when the Muslims were in power in entire India, एक जमाना था जब मुसलमानों की कई सौ साल तक हुकूमत चल रही थी। पहले दिल्ली सल्तनत भी थी, उसके बाद फिर मुगल हुकूमत भी कायम हुई, तो मुसलमानों की बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत कायम रही है हिंदुस्तान में। लेकिन फिर अब एक ऐसा मौका आ गया जब मुसलमानों का पॉलिटिकल डिक्लाइन था। अच्छा, ये नया जमाना है। इस जमाने में 1858 से लेकर 1947 तक हम बैटल्स को नहीं पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी बैटल्स। यहाँ पर बैटल्स नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देयर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। कॉन्स्टिट्यूशनल का बैटल मतलब ये है कि अब यहाँ पे कानूनी जंग होगी। ब्रिटिश पॉलिसीज लेकर आएंगे और उन पॉलिसीज का काउंटर करना होगा। अगर मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मुसलमान ना ही ब्रिटिश की पॉलिसीज को समझेंगे, ना ही उसे काउंटर कर सकेंगे। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, चाहे वो हिंदूज हो चाहे वो कोई भी हो, वो ब्रिटिश की पॉलिसीज को समझ के उसे काउंटर कर सकेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हिंदूज वर गेटिंग एजुकेटेड, हिंदूज वर गेटिंग डिसिप्लिन्ड। इन 1885, with the help of a British named Alan Octavian Hume, the Hindus were able to form a political organization known as Indian National Congress. आप देखो बेटा, तालीम का कितना फायदा हो रहा है। तालीम का फायदा क्या है? तालीम से मिल रही है पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये है कि अब हिंदूज को अकल आ रही है, हिंदूज को समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश को किस तरीके से इन द लॉन्गर रन कैसे हम काउंटर करेंगे। With the help of a British, Alan Octavian Hume, they were able to form an organization known as the Indian National Congress. शुरू में it was just like a debating society. शुरू में ये एक debating society थी। It was made to bridge the gap between the British and Indians. इसे इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेज और इंडियंस के बीच में जो गैप है उसे ब्रिज किया जा सके। इंडियंस के व्यूज ब्रिटिश को पहुंचाए जाएंगे और ब्रिटिश के व्यूज इंडियंस को पहुंचाए जाएंगे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सर सैयद ऑब्जर्व दैट कांग्रेस वाज अ हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। आहिस्ता आहिस्ता सर सैयद अहमद खान ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि मुसलमान अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस इज मोर लाइक अ हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करेंगे, मुसलमानों के बारे में बात भी नहीं करेंगे। और ये किस तरह से सर सैयद को पता चला? इन 1886 कांग्रेस प्रेजेंटेड सम डिमांड्स। कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स को रखा। डिमांड नंबर 1, कांग्रेस ने डिमांड किया हिंदी शुड बी मेड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया
by replacing Urdu. देखो सर सैयद अहमद खान ने क्या ऑब्जर्व किया कि कांग्रेस बजाहिर तो ये दिखा रही है कि दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया, कि हिंदुस्तान में मौजूद सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत पीस कायम करेंगे पूरे हिंदुस्तान में. बट द फैक्ट वाज दे वर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ हिंदूज एंड नॉट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स. दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम should not be in English, rather it should be in Hindi language. उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान में जो आईसीएस का एग्जाम होता है, जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है, ये हिंदी जबान में होना चाहिए. उर्दू में क्यों नहीं? उर्दू की बात ही नहीं कर रहे. इट मीन्स के मुसलमानों की लैंग्वेज, मुसलमानों के कल्चर से कोई परवाह भी नहीं. दे ओनली केयर अबाउट देयर ओन लैंग्वेज, बिकॉज हिंदूज की जो लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, दैट इज हिंदी. हिंदूज अगर हिंदी में एग्जाम पास करेंगे, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू सिक्योर मोर गवर्नमेंट जॉब. मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों को ना हिंदी आती है, ना ही मुसलमान अंग्रेजी सीखते हैं. मुसलमान बेचारे तो पीछे रह जाएंगे. लास्टली, कांग्रेस ने डिमांड किया दैट सीट्स इन असेंबली और in every area, in every field, should be according to population ratio. According to population ratio. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि चाहे आर्मी हो या गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई भी चीज हो, हर जगह पे सीट्स कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रेशियो. The thing is that in Hindustan, Muslims were only 25%. अगर मुसलमान सिर्फ 25% हैं, तो इस हिसाब से तो मुसलमानों को बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. हिंदूज वर इन मेजोरिटी, हिंदूज तादाद में ज्यादा थे. ऑब्वियसली द हिंदूज वुड बी मोर रिप्रेजेंटेड इन एवरी डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट जॉब में भी हिंदूज ज्यादा होंगे, एजुकेशनल सेक्टर में भी हिंदू ज्यादा होंगे, आर्मी में भी हिंदूज ज्यादा होंगे. This was the point when Sir Syed started to believe in two nation theory. यहाँ से सर सैयद अहमद खान के जहन में two nation theory के आइडियाज आना शुरू हुए. And this was the point when he realized that he need to work for the Muslims of India, otherwise Muslims would be left behind. इस point पे उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के political और social status को improve करने की जरूरत है. So this was the entire content, everyone. जो सवाल आपको लिखवाया उसका सारा का सारा कंटेंट भी आपको लिखवा दिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान ने अकेले अपने सर पे, अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारी उठा ली दैट ही वुड नाउ ट्राई टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे. देयर वर 3 एरियाज वेयर सर सैयद अहमद खान वर्क. 3 एरियाज थे जहां पे सर सैयद अहमद खान ने काम करने की कोशिश की. एंड दैट वाज टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम. सबसे पहले अंग्रेजों के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ बेहतर करवाने थे. नंबर 2, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. मुसलमानों में एजुकेशन को प्रमोट करना था. नंबर 3, टू इंक्रीज द पॉलिटिकल अवेयरनेस. और मुसलमानों को पॉलिटिकल अवेयरनेस देनी थी. सो दीज वर द 3 थिंग्स दैट सर सैयद अहमद खान wanted to work for the Muslims. I have a question over here, and that question is from Nabiha. Sir, you said that Hindi was made the... I never said Hindi was made the second official language in 1867. I said Hindus demanded Hindi to be made the second official language. हिंदूज डिमांड कर रहे थे 1867 में कि हिंदी जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए. और 1886 में इसी डिमांड को कांग्रेस ने भी दोहराया था. अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट कर दिया. अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है. जब हम पहुंचेंगे उस पॉइंट पर कि ब्रिटिश ने क्या किया इवेंचुअली, देन वी विल नो कि ब्रिटिश ने क्या हिंदुओं की बात मानी, नहीं मानी, मुसलमानों की बात मानी, नहीं मानी. बट एट दिस पॉइंट ओनली द डिमांड्स वर प्रेजेंटेड. सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स प्रेजेंट की जा रही है. बट स्टिल सर सैयद अहमद खान हैड सच अ फोरसाइट, सच अ विजन, कि उन्होंने पहले ही रियलाइज कर लिया कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में गैप फ्यूचर में बढ़ता जाएगा. क्योंकि हिंदूज तो अभी से
सिर्फ डिमांड्स कर रहे हैं और अपने लिए ही डिमांड्स कर रहे हैं। नाउ लुक एट द रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद अहमद खान एवरीवन। जरा सर सैयद अहमद खान के रिफॉर्म्स को पढ़ना शुरू करते हैं। कैन एनीवन रीड दिस? कोई इसे पढ़ सकता है? क्या लिखा हुआ है ये? उर्दू में क्या लिखा हुआ है? इस साल आप लोगों को उर्दू का एग्जाम भी देना है और उर्दू में ट्रांसलेशन भी आती है, तो कितने लोग हैं जो कि पढ़ सकते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ क्या है? कैन एनीवन रीड इट? पढ़ सकते हैं आप लोग? कोई तो पढ़ सकता है, अब ऐसा भी नहीं है। राइट ऑन द चैट प्लीज, व्हाट इज दिस रिटन? क्या लिखा हुआ है? कैन यू रीड दिस एनीवन? तुम लोग बोलोगे नहीं तो ये क्लास मेरे लिए बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तुम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना क्लास मेरे लिए बोरिंग हो जाएगी। नहीं, दिस इज रिटन असबाब, असबाबे सरकशी, सरकशी हिंदुस्तान का जवाब मजमून। क्या मतलब हुआ इसका? इट मींस कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। सर सैयद अहमद खान ने ऐसे लिखा, एन ऐसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। सर सैयद अहमद खान रोड दिस पैम्फलेट, उन्होंने ये पूरा पैम्फलेट लिखा और इस पैम्फलेट के अंदर सर सैयद अहमद खान ने एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों के ऊपर जो ब्लेम ब्रिटिश करते हैं कि मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, दैट इज रॉन्ग। Sir Syed Ahmad Khan explained that it was because of the policies of EIC. उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से मुसलमान और हिंदू सब प्रोवोक हो गए और उसके बाद उन्होंने रिवॉल्ट किया। अब सर सैयद अहमद खान कर क्या रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ अच्छे हो जाएं। इसी वजह से उन्होंने पैम्फलेट लिखा। 500 कॉपीज वर मेड, इसकी 500 कॉपीज करवाई एंड 498 वर सेंट टू इंग्लैंड, और 498 कॉपीज को उन्होंने इंग्लैंड भिजवाया। इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉलिटिशियंस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पॉलिटिशियंस में इसे तकसीम करवा दिया गया। एंड द ब्रिटिश पॉलिटिशियंस रेड दिस पैम्फलेट, उन्होंने पढ़ा। सम ऑफ देम क्रिटिसाइज सर सैयद अहमद खान, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा सर सैयद अहमद खान कौन होते हैं हमारे ऊपर लिखने वाले कि हमारी गलती है। बट सम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिशियंस अप्रिशिएटेड इट। कुछ ऐसे ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ सही है, सर सैयद अहमद खान ने हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर दिया, हम आइंदा इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। सर सैयद अहमद खान रोट अनदर पैम्फलेट, सर सैयद अहमद खान ने एक और पैम्फलेट लिखा एंड दिस पैम्फलेट वाज नोन एज रिसालाए खैर व मुसलमान, मुसलमान। In English, this is translated as the Loyal Mohammedans of India. उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा जिसका टाइटल था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है मुसलमान हिंदुस्तान से लॉयल हैं। सर सैयद अहमद खान ने इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा? सर सैयद अहमद खान रोट that Muslims are not traitors, Muslims are not disloyal, Muslims are very loyal to the British and Muslims are very loyal to this लैंड हिंदुस्तान। उन्होंने लिखा कि मुसलमान गद्दार कौम नहीं है, बल्कि मुसलमान तो अच्छे लोग हैं, मुसलमान तो अंग्रेजों के भी वफादार हैं। ही गेव हिज ओन एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने अपनी एग्जाम्पल क्या दी? उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी कि आई वॉज अमंग दोज मुस्लिम्स हु सेव्ड द लाइव्स ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। मैं उन मुसलमानों में से हूँ जिन्होंने अंग्रेजों की जान बचाई थी इस रिवॉल्ट में। तो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल को भी पेश किया और इसके अलावा बाकी लोगों की एग्जाम्पल्स को भी लिखा। He was trying to improve the relations of Muslims with the British. इसी तरीके से सर सैयद अहमद खान also tried to clear the misunderstandings about the word नदारत। ये नदारत का वर्ड क्या था? मुसलमान जो थे ना, मुसलमान उस जमाने में ब्रिटिश को तंग करते थे और मुसलमान उन्हें तंग करके कहते थे नदारत। मुसलमान क्या कहते थे? उन्हें नदारत कहते थे। अच्छा, ये जो नदारत का वर्ड था, इट वाज कंसिडर्ड
इंसल्टिंग फॉर द ब्रिटिश, अंग्रेजों को इंसल्टिंग रिमार्क फील होता था। अंग्रेजों को ऐसा फील होता था जैसे कि कोई उन्हें गाली दे रहा है, जैसे कोई उनके रिलीजन के ऊपर बात कर रहा है। सो दे यूज्ड टू हेट दिस वर्ड, उन्हें बुरा लगता था कि कोई भी उन्हें नजारत क्यों कह रहा है। जैसे कोई मुसलमान मजाक उड़ाते वक्त कह रहा है ना ये तो नजारत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्हें बुरा लगता था। सर सैयद अहमद खान एक्सप्लेन कि नजारत इज नॉट अ बैड वर्ड, दिस कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड नासिर विच इज एन अरेबिक वर्ड, इट मीन्स हेल्पर। तो सर सैयद अहमद खान ने बताया कि नदारत कोई बुरा वर्ड नहीं है। नदारत जो वर्ड है ये एक अरबी के वर्ड नासिर से निकला है जिसका मतलब है हेल्पर। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान आपको नदारत कहते हैं तो नदारत का कोई बुरा मकसद नहीं होता, मुसलमान तो आप लोगों को हेल्पर समझते हैं, तो इसीलिए मुसलमान आपको इस वर्ड से पुकारते हैं। सो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट के किसी तरीके से ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। सर सैयद अहमद खान रोट एंड ट्राई टू राइट दिस बुक, उन्होंने कोशिश की इस किताब को लिखने की, कुड नॉट कंप्लीट इट, इस किताब को पूरा नहीं लिख सके थे। द नेम वाज ताबईनुल कलाम। नाउ व्हाट वाज दिस ताबईनुल कलाम? ताबईनुल कलाम वाज एन अटेम्प्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान टू शो द सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखने की कोशिश की जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की सिमिलैरिटीज को दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हजरत ईसा उसमें भी कॉमन है और इस्लाम में भी कॉमन है, हजरत मरियम उनमें भी कॉमन है, हमारे रिलीजन में भी हैं, और बल्कि उनकी इज्जत और ज्यादा है इस्लाम में। इसी तरीके से द बिलीफ इन द डिवाइन बुक्स, मुसलमान का पूरा यकीन है तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, और इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस की बाइबल भी है उसके ऊपर भी मुसलमानों का ईमान है। So he was trying to bring both the religion and both the communities together by showing कि ये दोनों रिलीजन ऐसे हैं जो कि एक खुदा को मानते हैं, मोनोथिस्टिक रिलीजन है। एज कम्पेयर टू हिंदूज, हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड्स, उनके तो बहुत सारे आइडल्स होते हैं। तो हिंदूज की तो बात अलग ही छोड़ दें, मुसलमान और क्रिश्चियंस आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि इन दोनों को देखो एक ही खुदा को मानते हैं, इनके तो प्रॉफिट्स भी एक जैसे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट टू ब्रिंग द ब्रिटिश एंड Muslims closer. Sir Syed Ahmad Khan went to England, and when he was in England, he found a book. उन्हें एक किताब नजर आई, and that book was written by a British author. वो एक British author ने किताब लिखी थी. It was about Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but there were many errors in that book. उस किताब के अंदर बहुत सारे errors थे, बहुत सारी mistakes थी about the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So सर सैयद अहमद खान रोट अनदर बुक, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था खुतबात अल अहमदिया। एक किताब लिखी उन्होंने जिसका नाम था खुतबात अल अहमदिया, ट्रांसलेटेड एज सरमन्स ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सर सैयद अहमद खान ने बताया होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी, और बहुत ऑथेंटिक तरीके से इसे लिखा। He tried to remove all those errors, all those misconceptions which were in the minds of British. उन तमाम misconceptions को उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की जो कि अंग्रेजों के जहनों में था रिगार्डिंग होली प्रॉफिट एंड रिगार्डिंग इस्लाम। नंबर 2, सर सैयद अहमद खान tried to promote वेस्टर्न एजुकेशन फॉर द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान ने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों का तालीमी जो स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर हो जाए। सर सैयद अहमद खान ओपन सेवरल स्कूल्स, उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। फॉर एग्जाम्पल, ही ओपनड अ स्कूल एट मुरादाबाद, गाजीपुर एंड अलीगढ़। उन्होंने मुरादाबाद में, गाजीपुर में और अलीगढ़ में स्कूल खोला। ये मुरादाबाद लिखा है, मुर्दाबाद लिखकर नहीं आना आप लोग, सही है? स्पेलिंग के लिए काफी केयरफुल रहना होगा आपको कि मुरादाबाद लिखा हुआ है, इट्स नॉट मुर्दाबाद। सो ही ओपनड स्कूल्स एट मुरादाबाद, गाजीपुर एंड अलीगढ़। He also established a scientific society. उन्होंने एक सोसाइटी बनाई गाजीपुर में जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। और साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था? द पर्पस ऑफ द सोसाइटी वॉज टू ट्रांसलेट। क्या करना था? इसे ट्रांसलेट करना था। जितने भी इंग्लिश में लिखे हुए साइंटिफिक जर्नल्स थे, दे हैड टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू,
उसे अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसे पढ़ सकें और मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहें। सर सैयद अहमद खान विजिटेड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए, and when he visited England, he visited the British educational system. He visited the universities like Oxford and Cambridge. वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने जाके विजिट किया और वहां से बहुत इंस्पायर हुए, और इतने इंस्पायर हुए दैट ही स्टार्टेड टू विश कि मैं भी हिंदुस्तान जाके मुसलमानों के लिए बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे तालीमी इदारे बनाऊंगा। When he returned back to India, जब इंडिया वापस आ गए, so he launched a movement known as the अलीगढ़ मूवमेंट। एक मूवमेंट लॉन्च हो गई जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है। अम्ब्रेला वर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। वी टॉकिंग अबाउट द 3 डिफरेंट रिफॉर्म्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। हम सर सैयद अहमद खान के 3 रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जरा 3 रिफॉर्म्स हैं क्या, जरा देख लेते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट के एम्स क्या थे। नंबर 1, टू कम्युनिकेट इजीली विद द ब्रिटिश ऑफिसर्स। अगर मुसलमान पढ़ेंगे लिखेंगे अंग्रेजी सीखेंगे तो अंग्रेजों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। नंबर 2, मुस्लिम्स वुड गेन अ प्रॉपर स्टेटस इन द सोसाइटी। मुसलमान बेचारे जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन बन के रह गए थे, अगर तालीम हासिल करेंगे तो मुसलमानों का एक अच्छा सोशल पॉलिटिकल स्टेटस होगा हिंदुस्तान में। नंबर 3, मुस्लिम्स वुड बी रिस्पेक्टेड एंड सर्व एज लीडर्स। मुसलमानों की इज्जत भी बढ़ेगी और मुसलमान फ्यूचर में लीडर्स भी बनेंगे। दिस वाज द एम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, एंड इफ यू सी this is very close to the initial aim of सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान का इनिशियल एम हमने पढ़ा है वो क्या था? अंग्रेजों के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को बेहतर करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना। सो दिस इज अ रिकरिंग थीम इन सर सैयद अहमद खान के बार बार सर सैयद अहमद खान इसी चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो कि पूरे करने होंगे, एंड फॉर दैट पर्पस अ मूवमेंट वाज फॉर्म्ड known as the Aligarh movement. Why the name Aligarh movement? Because it was the city of Aligarh which became a center for Muslim development, और यहाँ पर सबसे पहले अलीगढ़ स्कूल बनाया था। It was known as the मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। सबसे पहले एक स्कूल बनाया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। Within 2 years it became a college. 2 साल में ही it became MAO कॉलेज, और ये MAO कॉलेज बन गया था। मैं आपको बता रहा था कि सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए और वहां से वापस आए, और उनका एम था कि ऐसा इदारा मैं बनाऊंगा जहां पे मुसलमान अच्छे से तालीम हासिल कर सकेंगे, एंड सो ही एस्टैब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल विच बिकेम अ कॉलेज विद इन 2 years, और 2 साल में ही वो एक कॉलेज बन गया था। अच्छा, कॉलेज बन गया, यहाँ पर कौन सी तालीम दी जा रही थी? इन दिस स्कूल एंड कॉलेज इंग्लिश वॉज बींग टॉट, agricultural science was being taught, mathematics was taught, modern scientific developments were taught, updated curriculum was taught on the pattern of English school system। जैसे अंग्रेजों के स्कूल्स होते हैं और बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, बिल्कुल उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के लिए एक अच्छा इदारा बनाया था। इन 1920 दिस बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यही जो है वो आगे चल के मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द फ्यूचर लीडर्स लाइक लियाकत अली खान एंड अयूब खान स्टडीड। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे चल के पाकिस्तान में गवर्नमेंट को भी संभाला था। लियाकत अली खान became the first prime minister of Pakistan in the future। जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जबकि जनरल अयूब खान became the first Muslim and Pakistani commander in chief of Pakistan Army, and later on he also became the president of Pakistan, और बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने थे। So this gives you an idea कि सर सैयद अहमद खान ने कितना अच्छा इदारा बनाया। उस इदारे से लोग आगे पढ़ के लीडर्स बने, ना सिर्फ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किया बल्कि आगे चल के पाकिस्तान को भी संभाला। So this was the contribution of Sir Syed Ahmad Khan. If everything is clear up till now, please click on the tick mark. अब तक सब कुछ
सही से समझ में आ गया है तो जल्दी से जरा टिक मार्क के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इजी चैप्टर है और इसमें कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला तो पार्ट है नहीं। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट सेक्शन 2 में स्टार्ट होगा, ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अंदर। अभी तक तो क्या है कि अभी तो इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बायोग्राफी टाइप के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। Here now look at the board everyone. Sir Syed Ahmad Khan also initiated the publication of magazines. मुसलमानों के लिए कुछ मैगजीन्स को भी इनिशिएट किया गया, सच एज तहजीबुल अखलाक एंड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये जो दो मैगजीन्स थे, व्हाट वर द आर्टिकल्स बीइंग पब्लिश्ड इन देम, इनके अंदर कौन से आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा रहा था? इनिशियली द आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड उर्दू। ये एक ऐसे मैगजीन्स थे जिसमें अंग्रेजी और उर्दू दोनों में ही आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा रहा था, ताकि मुसलमानों की अंग्रेजी भी इंप्रूव हो और मुसलमानों की उर्दू भी, उर्दू से भी सीखेंगे मुसलमान। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आजकल हम लोग हर जगह सुनते हैं तालीम तरबियत, तालीम और तरबियत। ये तालीम और तरबियत एक्चुअली सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? दीज मैगजीन्स had the articles not only regarding the education but overall grooming and development of the Muslims। सिर्फ इसलिए नहीं था ये आर्टिकल्स में लिखते थे कि सिर्फ तालीम को प्रमोट किया जाएगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, बल्कि ओवरऑल कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट किया जाएगा, रिलीजियस वैल्यूज को रिवाइव किया जाएगा, मुसलमानों की तरबियत की जाएगी। लेटर ऑन बोथ द मैगजीन्स वर मर्ज्ड, बाद में दोनों मैगजीन्स को मर्ज कर दिया गया था, एंड ओनली द नेम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट सर्वाइव्ड, और तहजीबुल अखलाक को डिसकंटिन्यू करके एक्चुअली मर्ज कर दिया था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था। देयर वर मेनी मुस्लिम राइटर्स एंड स्कॉलर्स हु जॉइंड सर सैयद अहमद खान। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, जिन्होंने सर सैयद अहमद खान को ज्वाइन कर लिया था इन आर्टिकल्स को लिखने में। लेकिन ये सब कुछ करने में सर सैयद केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द उलमास। सर सैयद अहमद खान की लड़ाई हो रही थी उलमास के साथ। लड़ाई का मतलब वैसे फिस्ट फाइट नहीं है। द उलमास, द मुस्लिम उलमास, द मुस्लिम स्कॉलर्स डिक्लेयर्ड सर सैयद अहमद खान एज काफिर। ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने सर सैयद अहमद खान को काफिर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये तो ब्रिटिश के एजेंट है और ये तो अंग्रेजों की एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, उनके कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ये मुसलमानों को दीन से दूर कर रहा है, ये मुसलमानों को रिलीजियस वैल्यू से दूर कर रहा है। बट नेवरदलेस सर सैयद अहमद खान जो अपने एम को लेके चले थे, वो अपने एम पे लगे रहे और उसी को पूरे करने में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। ऑल्दो दिस इज द सिलेबस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, आई एम टीचिंग ओनली पाकिस्तान स्टडीज। इफ यू आस्क, देयर इज डिवाइडेड ओपिनियन रिगार्डिंग सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अच्छे इंसान तो थे, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम भी किया, बट देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन रिगार्डिंग सर सैयद अहमद खान। कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस भी हैं। उस कंट्रोवर्सी में फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं डालूंगा, बिकॉज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम यू शुड नो दैट। ऐसा ना आप मजीद कंफ्यूज हो जाएं रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी, और घर जाके जब आप लोग, बल्कि आप लोग तो घर में ही हैं, जब आप घर में अपने बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि सर ने तो बताया सर सैयद अहमद खान तो ये करते थे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं हमारे बच्चे क्या पढ़कर आ गए। तो हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट दिस सिलेबस रिक्वायर्स ओनली दिस मच स्टफ, और मैं उतना ही स्टफ आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। लास्टली, द लास्ट वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान वॉज टू इम्प्रूव पॉलिटिकल अवेयरनेस। मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस को इम्प्रूव करना था। आप सबने सुना होगा टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, जिसकी बेसिस के ऊपर आगे चल के पाकिस्तान बना है कि मुसलमान अलग कौम है, हिंदूज अलग कौम है। दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द स्पीचेस ऑफ सर सैयद अहमद खान। ये जो कॉन्सेप्ट है सर सैयद अहमद खान के अल्फाज से, उनकी स्पीचेस से हमने इन्फर किया है। ऐसा नहीं कि सर सैयद अहमद खान ने बड़ी सी हेडिंग डाल के लिखा होगा टू नेशन थ्योरी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। We can see from the words of Sir Syed Ahmad Khan what he meant. For example, Sir Syed Ahmad Khan की speech में लिखा है, Now suppose that all the English were to leave India। फर्ज करें कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाते हैं, then who would be the rulers of India? तो हिंदुस्तान पे कौन हुकूमत करेगा? Is it possible that under these circumstances two nations, ये अल्फाज देखो सर सैयद अहमद खान के,
क्या ये पॉसिबल है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें दो कौमें, मुसलमान एंड हिंदू, could sit on the same throne and remain equal in power? सवाल उठा रहे हैं सर सैयद अहमद खान कि देखो, अगर अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, क्या मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर रूल कर सकेंगे? मोस्ट सर्टेनली नॉट। ऐसा नहीं है, मुसलमान और हिंदू मिलकर रूल नहीं करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ देम शुड कॉन्कर द अदर एंड थ्रस्ट इट डाउन। इस जरूरी है कि या तो मुसलमान हिंदूज को डोमिनेट करेंगे या हिंदूज मुसलमानों को डोमिनेट कर देंगे। To hope that both could remain equal is to desire the impossible and inconceivable. इस बात की उम्मीद भी रखना कि दोनों मिलके रहेंगे, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, नामुमकिन सी बात है, ये पॉसिबल ही नहीं। इसी तरीके से सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में क्या कहा था? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में सर सैयद अहमद खान का ख्याल था, when even the language of a nation is not safe at the hands of other nations in a region, it would be unwise to continue living with them. सर सैयद अहमद खान, एक जमाना था जब वन नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। एक जमाना था जब सर सैयद अहमद खान कहते थे मुसलमान और हिंदू मिलके रहेंगे, मुसलमान और हिंदू एक कौम है। लेकिन हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद, कांग्रेस की डिमांड्स के बाद, सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और दोनों मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करते। सो इट वुड बी अनवाइज टू कंटिन्यू लिविंग विद देम, और फ्यूचर में एक साथ रहना इनके साथ अकलमंदी नहीं होगा। सर सैयद अहमद खान इन चीजों को रियलाइज कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से कहा कि मुसलमान कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। सर सैयद अहमद खान ने स्ट्रिक्टली मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करें। इंस्टेड ही मेड ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया। इन 1886 सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सैयद अहमद खान ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, MEC, and the purpose of MEC was to increase political awareness and to counter the influence of Congress, कि कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे, मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे, मुसलमानों के ताल्लुकात को ब्रिटिश के साथ इंप्रूव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? 1886 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया। इन 1898 सर सैयद अहमद खान डाइड। सर सैयद अहमद खान की डेथ हो गई 1898 में। लेकिन इन 1906 द मेंबर्स ऑफ MEC हैड अ मीटिंग। मेंबर्स ऑफ MEC ने एक मीटिंग की 1906 में। इन दिस मीटिंग दे फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी नोन एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और वही जो मेंबर्स थे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है विच इन 1947 अचीव्ड पाकिस्तान। तो इस पॉलिटिकल पार्टी में जिन्ना शामिल हुए, लियाकत अली खान शामिल हुए, अल्लामा इकबाल शामिल हुए, और उन्होंने ही आगे चल के पाकिस्तान को अचीव किया। दिस शोज के 1886 में सर सैयद अहमद खान ने जो एक पौधा लगाया था, वो आगे चल के एक इतना बड़ा दरख्त बन गया जिसने बहुत सारे फ्रूट्स बेयर किए फॉर द मुस्लिम्स। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, एंड वी कैन लुक इनटू द वर्कबुक एज वेल। वर्कबुक में हम देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान का टॉपिक वुड बी ऑन पेज, in your workbooks everyone, go to page number 102. तो पेज नंबर 102 में you're going to see the questions regarding सर सैयद अहमद खान, जिसमें सर सैयद अहमद खान के आपको बिलीफ्स के बारे में भी क्वेश्चन है। These are the questions regarding the beliefs of सर सैयद अहमद खान, and also the questions regarding the contributions of सर सैयद अहमद खान। तो इस तरीके से you're going to solve within the workbook। इसी तरीके से आप लोग वर्कबुक में सॉल्व करेंगे, and this would be your homework। This would be the end of this chapter number 4, सर सैयद अहमद खान। इस तरीके से सर सैयद अहमद खान का चैप्टर भी खत्म हो गया। सेक्शन 1 को एंड करने में we are only left with
1 चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर रह गया लैंग्वेजेस, जिसके बाद हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह राइट ऑन टारगेट हम लोग फिर सेक्शन 2 स्टार्ट कर देंगे, एंड देन सेक्शन 3। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास एवरीवन, एंड see you on Wednesday with the new chapter. Take care. Allah Hafiz. Yes, Abdullah, sure. You can pick it up on Saturday.